Hello, children. You are welcome to the Digi classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal. This video is for class 11th. Subject is accounts. Chapter number 5, journal. This is second part. Before we start making journal, let me introduce some important entries regarding this. The first journal entry related to this is compound journal entry. Compound means combination of two or more than two. So the compound entry is done when more than two accounts are debited and single account is credited. We can say when two or more than two accounts are debited or credited, then we make compound entries. Or else, if there are many transactions on the same date with the same account, it means three accounts are being debited by the same account which is being credited. In that case also we can make compound entry. Or transactions which have to make jointly and cannot be separated, like the purchase of an asset or an machinery and its expenses on its installation. So all those expenses will be included to the cost of machinery. So these expenses accounts cannot be separated from the assets account. So in such cases we have to make compound entry. Okay, compound means more than one. You have to record more than one transactions occurred on the same date. In that case also you will have to make a compound entry. तो कुल मिलाकर हम इसको कैसे समराइज कर लेंगे? जब दो या दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हों और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो, या इसका उल्टा कर दो, दो या दो से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो, या हमें सिंगल एंट्री बनाना है एक ट्रांजैक्शन के लिए जो कि सेम डेट में हुई है तब, या ऐसी एंट्रीज़ जहां पर किसी अकाउंट को दूसरे अकाउंट से सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसे जॉइंट लिखना ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो इन चार परिस्थितियों में हम कंपाउंड एंट्रीज करते हैं। ठीक है, यू सी ऑन योर स्क्रीन यू आर गिवन अ कंपाउंड एंट्री ऑन अप्रैल 30 3 expenses occurred: salary, rent and commission, and expenses are debited. So all those expenses are debited by their amount and the total amount cash is gone. So whatever goes it is credited. कैश चला गया है इसलिए कैश में टोटल पैसा लिख दिया आपने 1000 रुपीज़ एक्सपेंड। ठीक है। नाउ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, you can refer video for chapter number 1 where we already have learnt what is trade discount and what is cash discount. Trade discount is given on invoice price, it means on the bill, to every customer whether goods is purchased by him in cash or credit. ये हर किसी को मिलता है, ये भगवान के मंदिर का प्रसाद है, सभी को मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शूद्र दलित सबको मिलने वाला है, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होती। अकाउंटिंग बुक्स में इसका जो भी अमाउंट होता है वो कहीं पे भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता, केवल एक नरेशन लिख दिया जाता है नीचे कि दैट मच ट्रेड डिस्काउंट इज़ गिवन, दैट्स इट।
बट नो अमाउंट इज मैंशनड इन अकाउंटिंग बुक्स। ठीक है, so that is deducted separately, and whatever the result after deduction, the amount of trade discount, it is mentioned in accounting books in general entries. Okay, but cash discount जो है, if it is received then it's a profit, so that will be shown, and if it is given to any other party, so it's a loss or business का expense है, so that will be debited. तो कैश अकाउंट का लेखा जोखा हम करेंगे अपनी बुक में, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी लेखा जोखा नहीं करेंगे। इसके लिए तुम एक एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल देखो, तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है। बी जो कि एक डेटर्स है, वो 370 रुपीज़ पे कर रहा है। सेटलमेंट हो रहा है 400 रुपये के लिए। कितने रुपए के लिए? 400। तो 30 रुपये का क्या हो गया यहाँ पर? डिस्काउंट हो गया। 400 रुपये उसको देना थे और उसने दिए केवल कितने हैं? 370 रुपये, यानी 370। तो दैट इज़ हिडन पॉइंट, दैट कि 30 रुपये जो उसने नहीं दिए और फुल सेटलमेंट हो गया है, इसका मतलब 30 रुपये का क्या हो गया? उसको डिस्काउंट वो नहीं चुकाएगा। 400 के बदले में वो 370 देके उसने क्या दिया कि काम ख़त्म, अब नहीं देंगे पैसा हम इसके बाद। और दोनों जो पार्टीज़ हैं वो उस पर एग्री हो गई हैं, कंसेंट है उन दोनों का कि नहीं चलो ठीक है। सो दैट इज डिस्काउंट। तो उसमें क्या हुआ? कैश आया, कितना आया? 370। तो वॉट एवर कम्स इन इट इज़ डेबिटेड, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज डेबिटेड। ₹30 is a discount and it's a loss of business, so the loss also is debited, therefore discount account is debited by ₹30. And the amount which B was owing to the business, so that is credited by full amount 400. So to B 400 it is considered. In case of other, मतलब यदि ये केस उल्टा हो जाए, यदि डिस्काउंट रिसीव हो तो ये प्रॉफिट होगा। इन दैट केस डिस्काउंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिकॉज कैश इज गोइंग and A is being paid, so A is receiver and receiver is always debited. So that's why A's account is debit by ₹4,000, cash gone 370, and discount received, that is profit or gain revenue of the business. So that is why ₹30 comes in credit side. Okay, you see another example of trade discount just below the above one. Neeta sold goods for cash to Ajay in a list price 10,000. List price means bill, invoice price, and 10% trade discount. तो ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपीज़। सो दैट विल बी डिडक्टेड एंड कॉस्ट मानी जाएगी 9,000। हमें उसे 1,000 से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी वन, चाहे कैश में ख़रीदो चाहे उधार में ख़रीदो, हर किसी को मिलेगा। मंदिर का प्रसाद है ये। तो उस अमाउंट का कोई लेखा जोखा हम नहीं करेंगे। तो अमाउंट कितना बचा? 9,000। अब कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5%, तो यू विल फाइंड आउट 5% ऑफ 9,000, सो दैट कम्स टू 450। सो 9,000 इज द value after deducting trade discount. So 450 is subtracted from 9,000, which comes to 8,550. So 8,550 is received, 450 is given discount, and total amount is 9,000. So your entry will be cash account debit 8,550, discount is allowed, therefore it's a loss or expense of the business, that's why it is debited। एंड कैश में पैसा आ गया। अब माल कोई भी खरीदे, उस नीता ले, सीता ले, गीता ले, कोई मतलब नहीं, काला चोर ले जाए। बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मतलब होता है। तो पैसा किससे आया? माल को बेचने से। दैट्स वाई टू सेल्स, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, नाउ थर्ड important entry is charity। चैरिटी वाली है। यदि if goods is given in charity, चैरिटी का मतलब क्या होता है? दान में दे दिया कोई चीज़ आपने,
तो दान में जो चीज़ें हैं वो 3 प्रकार से दी जा सकती हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और थ्रू बैंक। तो इसमें जाना ही जाना है सब, आना कुछ भी नहीं है। दान दे दिया, है ना। तो चैरिटी इज़ एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंड एक्सपेंस इज डेबिटेड, देयरफॉर चैरिटी अकाउंट इज डेबिटेड टू आइदर कैश, यदि कैश दिया है तो टू कैश लिखना, बैंक से चेक वेक दे दिया किसी को तो टू बैंक, और यदि गुड्स से दिया है तो टू परचेज। ये ध्यान रखना, क्योंकि माल तुमने कहाँ से दिया, जो तुमने खरीदा था उसमें से कम हो गया, इसलिए टू परचेज अकाउंट आएगा यहाँ पर। ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती है? बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो भी लेता है वो ड्राइंग्स हैं। तो ड्राइंग्स भी जो है वो 3 प्रकार से कर सकता है। कैसे? बिज़नेस की तिजोरी में से पैसे निकाल लिए कैश, या बिज़नेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, या बिज़नेस में से वो माल निकाल के ले गया। तो जो चीज़ जाती है, वॉट एवर गोज़ आउट इट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड, देयरफॉर दीज 3 अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड ड्राइंग्स इज़ अ लॉस to the business, therefore drawing account is debited, or you can say drawing account representing the account of owner। तो ओनर को अपन ने डेबिट कर दिया, ओनर इज रिसीवर हियर, है ना। तो ओनर्स अकाउंट इज डेबिटेड। तो ओनर के अकाउंट कौन कौन से होते हैं? क्रेडिट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है और ड्राइंग्स अकाउंट होता है। तो ड्राइंग अकाउंट इज डेबिटेड। अब जो भी कंडीशन क्वेश्चन में रहेगी, यदि कैश निकाला उसने तो अकेला टू कैश आएगा, बैंक से निकाला है तो टू बैंक आएगा, और यदि उसने गुड्स निकाला है तो टू परचेस आएगा, क्योंकि माल वो कहाँ से ले जाएगा? जो खरीदा गया था उसी में से निकाल के ले जा सकता है। इसके अलावा ड्राइंग्स वो किस किस चीज़ के लिए कर सकता है? कुछ पॉइंट्स देखो नीचे लिखे हुए हैं। अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पैसा निकाल ले, इनकम टैक्स पे करे। इनकम टैक्स जो है वो बिज़नेस का टैक्स नहीं है। इनकम किसको हो रहा है? बिजनेसमैन को। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड एज पर्सनल, है ना। बिजनेस इज नॉट लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑफ द बिजनेसमैन, तो वो ड्राइंग्स कंसीडर की जाएगी। वेल्थ टैक्स यानी प्रॉपर्टी पे लगने वाला। रिपेयरिंग एक्सपेंस, यदि प्रोप्राइटर के घर की कोई रिपेयरिंग वगैरह हो रही है तो, या बच्चों की उसकी फ़ीस, या अदर कोई प्राइवेट कुछ भी होगा, या मेडिकल एक्सपेंस वगैरह। कुल मिलाकर बिजनेसमैन अपने पर्सनल के लिए खुद भी निकाले, खुद के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, किसी के भी लिए, तो वो ड्राइंग्स कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। चोरी लग गई दुकान में, या आग लग गई, चोरी हो गई, तो क्या हो गया? लॉस। तो हम क्या अकाउंट, लॉस क्या होता है? डेबिट। इसलिए लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करेंगे, और आग लग जाने से क्या होगा? माल चला जाएगा, इसलिए टू परचेस। ठीक है, अपना माल उतना चला गया, जो खरीदा था वो ख़त्म, तो माल कहाँ से गया? परचेस में से, इसलिए टू परचेस अकाउंट इसमें होगा। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कुछ माल सैंपल में देना पड़ता है दिखाने के लिए लोगों को, तो लोग पसंद करेंगे फिर ऑर्डर देंगे। तो फ्री सैंपल में जो माल दिया उसमें भी क्या है? वो घाटा है बिजनेस का, इसलिए ये भी क्या होगा? डेबिट, है ना। तो क्या लिखेंगे? फ्री सैंपल अकाउंट इज डेबिटेड टू परचेज। माल कहाँ से दे रहे हो? जो खरीदा था, इसलिए टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। लोन गिवन, जिसको भी लोन देंगे वो रिसीवर रहेगा। मान लो तुमने ए को लोन दिया है तो एज लोन अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश, टू बैंक भी हो सकता है यदि चेक दिया है तो। ठीक है। लोन टेकन, जस्ट ऑपोजिट। लोन जब तुम लोगे तो क्या होगा? कैश आ जाएगा, तो जो चीज़ आती है वो डेबिट। तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू जिससे भी लिया है, जिस भी व्यक्ति से लिया है उसका लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स में ये एक प्रकार से बिजनेस की असेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कैलकुलेटर हो गया, टेबल हो गई, है ना, पेन हो गया, स्टेशनरीज हो गई, हाँ, कोई बॉक्स ले लिया, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि बिज़नेस की फंक्शनिंग को आसान बना देती हैं।
तो वो कहलाते हैं इक्विपमेंट्स, या औजार भी हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, कोई इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बिज़नेस की एक छोटी सी असेट्स कहलाती हैं। तो असेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो जो भी बिज़नेस इक्विपमेंट अकाउंट है तो वो हो जाएगा डेबिट। और पैसा कहाँ से दिया है, तो यदि कैश में दिया है तो टू कैश, यदि मान लो बैंक से दिया है चेक के थ्रू तो टू बैंक, और यदि उधार खरीदा है तो जिस भी व्यक्ति से खरीदा है उसका पर्सनल नाम इसमें आएगा। ठीक है। अब इसके बाद कुछ एंट्रीज़ और हैं, बट जब तक तुम ये एंट्रीज़ लर्न नहीं करोगे तुम जर्नल नहीं कर सकते। तो तुम्हारा सबसे पहला काम है इन जर्नल एंट्रीज़ को लर्न करना बाय हार्ट। ठीक। फिर we'll discuss some more journal entries with some special cases in next video. Thank you.